Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video and daily topic-wise news analysis where the coverage of the news is from two leading newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So we cover news from both of these newspapers, and the main theme is like whatever news is important that we'll discuss its theme, its topic that is relevant for the examination. So let's get started. So these are the topic list for today. Today is 26th of June, and the topic list is in space, universalizing the PDS, the public distribution system, drugs abuse and the pandemic. The fourth topic is panchayat funding, and the last is China along the LAC, that is line of actual control. Apart from this, we'll have some MCQs question with explanation. तो वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल के जो सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा. सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन. So coming to the first topic, that is in space. You can find this news in the national page of the Daily Hindu. आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी. बात करें इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, और सबसे ज़्यादा इस न्यूज़ का जो इंपॉर्टेंस है वो है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. सो दिस इज़ अ मस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि इससे बन सकते हैं. So let's see what the detail of this news. So first, as you know that the Union Cabinet has recently approved for the creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center called InSpace in short, right? And this would provide a level playing field for the private companies to use Indian space infrastructure. Before this, because of the security reason, only the government agencies like ISRO, like IEHL, Hindustan Aeronautic Limiteds, and Antrix, like the arms wing of basically ISRO, they were mostly working for the space organization, right? Now, after this decision, the aim is this to ensure the greater participation of the private companies in the Indian space activities. So, government is trying to give a leverage so that we can overcome the technological पार्ट्स एंड कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है मदद करेगी, राइट. नाउ व्हाट इज इन स्पेस. अगर इन स्पेस की बात करें, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जो ऐसा मैंने आपको बताया, तो प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं ये है क्या. बेसिकली इट एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बिटवीन द इसरो, जो हमारे इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ से एक रेफरेंस का काम करेगी. सपोज दिस इज इसरो, दिस वुड बी द वन रेफरेंस, एंड एनीवन हु वांट टू बी पार्टिसिपेटेड इन द स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज कैन यूज इंडियन टेक्नोलॉजिकल या स्पेस रिसोर्स. सो इट वुड एक्ट एज अ, this is ISRO, this would act as a mediator between the organization and the individual, right? And it will also have an hold hand to promote the guide the private industries को किस तरह से आगे करना है, the space activities through increasing the policies and friendly regulatory environment. तो इंडिया में वैसे भी रेगुलेशन को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिंजेंस इतनी ज़्यादा है, हमारे पास रेड टेपिज्म बोल के सारी चीज़ों में है. द थिंग इज़ दैट, सो चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, उसके तरफ भी इन स्पेस का एक मोटो होगा, राइट. Now coming to the Indian National Space Promotion Board, this has also been formed, and this would set up to strengthen the Department of Space and the promotion of private space entrepreneur or the non-governmental space entrepreneurs. तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सरकार की जोर वैसे भी रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, तो स्पेस सेक्टर में भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी इससे, राइट. सो दिस यू कैन राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन. दिस पॉइंट वुड बी रेलेवेंट देयर. Now coming to the need, why it was needed, कि in space की क्या ज़रूरत पड़ी, why it was needed. So as you know that India is among the handful of the country which has advanced capabilities of the space sector. Talking about the advancement of the space sector, India is among the top 5 countries in the world जहाँ पे हमारे space sector में एक अच्छा हमारा दबदबा है. We have a good basically all the technological parts. Now talking about the space sector, basically it can play a catalytic role in the technological advancement and expansion of our industrial base. See, technology, space, these are the two important domain of a country. These are the symbols, these are the ingredient, the important highlighting part of the any developed nation. तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है. इस कैपेबिलिटीज़ को इंडिया को और स्ट्रेंथन करना है इफ़ यू वांट टू गेट इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड नेशन, राइट. और जो इन स्पेस होगा, दिस विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनी. जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने की, इफ़ दे वांट टू यूज़ विथ अ कोऑर्डिनेशन विथ इन स्पेस, दे कैन यूज़ इट. नाउ दिस रिफॉर्म विल ऑल्सो अलाउ द इसरो, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, जो 50 years old ऑर्गेनाइजेशन है इसरो,
This will focus more on the new technology, exploration mission and the human space craft program. आपको पता होगा, इस पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एक स्पेसएक्स पोल के एक मिशन स्टार्ट की गई थी नासा के कोलैबोरेशन के साथ, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड दिस. सो दिस वाज द जॉइंट एफर्ट जहाँ पे ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ लोगों को स्पेस में भेजा गया, राइट? सो दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इस तरह से कुछ और इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो स्पेस सेक्टर कैन प्ले अ कैटालिटिक रोल इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आई हैव टोल्ड यू, एंड द एक्सपेंशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल बेस. तो इस वजह से जो क्रिएशन हुई है इन स्पेस की, दिस वुड वर्क टूवर्ड्स अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज. इसके अलावा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी, चाहे वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ पे भी, एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पेस सेक्टर. सो अल्टीमेटली दे वुड बी बूम टू द स्पेस सेक्टर. Now, with this reform, the sector will receive the new energy dynamics to the new stage of the space activities. So, in anyhow, would be augmenting our reform, we would be augmenting our space activities and technological part. So, this is a very good news which is coming from the space sector. The privatization would definitely help, and let's see, we hope for the positive outcome. क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ओवरऑल जो डेवलपमेंट में जो स्पेस सेक्टर में उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है. Now coming to the other topic, that is universalizing the PDS. You can find this news, this editorial in the Indian Express. So Deepa Sinha is the teacher at Ambedkar University. So she has written this article. She talks about the PDS, the importance of public distribution system, and the relevance of this topic is again in the Gender Studies paper 2 and Gender Studies paper 3, where in paper 3 specifically they have written the public distribution system and the food security. ये आपके syllabus में already mention है. So this is mostly important for the mains perspective and none of the prelims, right? तो mains के लिए ज़्यादा है ये. तो बात करें अगर PDS, public distribution system, that has played an important role in providing the relief to the aftermath of the national lockdown. National lockdown के बाद PDS एक ऐसा टूल उभर के उतरा है, ऐसा टूल इंडिया गवर्नमेंट के पास है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जा सकती है, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 केसेस जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, सो देयर इज़ अ नीड कि गवर्नमेंट इंश्योर करे जो बेसिक सपोर्ट है सब्सिडाइज फूड ग्रेन पे वो लोगों तक पहुँच पाए, राइट? ऐसे कई लोग जो स्टारवेशन से या फिर हंगर की वजह से मारे जा रहे हैं. Now coming to the COVID-19 सर्वे, एक सर्वे की गई थी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. दिस इज अ प्राइवेट बेसिकली थिंक टैंक यूनिवर्सिटीज़. इनके काफ़ी रिसर्च पेपर्स आते हैं. तो इनके मुताबिक 89% ऑफ द रूरल एंड 69% ऑफ द अर्बन रेस्पोंडेंट वेर एबल टू गेट द फूड ग्रेन फ्रॉम द गवर्नमेंट राशन शॉप. जो PDS राशन शॉप है उसमें अगर आप रूरल एरिया की बात करोगे तो जो लोगों को बेनिफिट मिला वो 89% लोग थे, और अगर बात करें अर्बन एरियाज में सो ओनली 69% ऑफ पीपल हैव गॉट द बेनिफिट. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि चलो कम से कम इतने लोगों को बेनिफिट तो मिल रही है. And compared to 30% of the household that have received the जनधन ट्रांसफर. और अगर जनधन ट्रांसफर की बात करें जो हमारी कैश ट्रांसफर है, इसके जो बेनिफिशियरी है सिर्फ 30% है. यू कैन सी इट इज़ मोर बेटर टू गिव देम द फूड रादर देन टू गिव देम द कैश. ना बात करें जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसको NFSA भी कहते हैं, उसमें अबाउट 60% ऑफ द करेंट पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट जो 60% पॉपुलेशन है उनको प्रायोरिटी राशन कार्ड देने की ज़रूरत है. कुछ स्टेट्स ने जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उन्होंने एडिशनल कवरेज दिया है और एडिशनल सपोर्ट्स दिया है अपने बजट एलोकेशंस के थ्रू, राइट? एंड प्रोवाइडिंग द एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन एंड 1 kg ऑफ पल्सेस फ्री अंडर ये जो बेसिकली जो लॉकडाउन के बाद जो फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज आई थी सरकार की तरफ से, उसमें इसकी अनाउंसमेंट की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में. तो वहाँ पे बेसिकली वॉज ओनली 81 करोड़ इंडिविजुअल हु आर कवर्ड अंडर द NFSA. तो इसको भी बेसिकली PDS के थ्रू और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. और डिमांड ये की गई है कि सरकार ने अभी रिसेंटली इसको जुलाई तक बेसिकली अलाउ किया है, एंड द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन कि इसको कम से कम अक्टूबर तक या 3 months तक और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, राइट? ना बात करें कुछ वे फॉरवर्ड की, तो कैश ट्रांसफ़र कैन नॉट बी एन सब्स्टिट्यूट, जो मैंने आपको ग्राफ से बताया, जहाँ पे सिर्फ 30% लोगों को ही पैसे मिल पाए हैं. और अगर अब आप बात करोगे बेसिकली जो फूड सब्सिडीज़ या डायरेक्ट शॉप से PDS शॉप से, तो ऑलमोस्ट 80% की रेशियो है, 89% के आसपास, राइट? तो कैश ट्रांसफ़र कैन नॉट बी एन सब्स्टिट्यूट प्रोविजन फॉर द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन.
विड्रॉइंग ऑफ द पीडीएस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है, तो दिस इज द टाइम कि पीडीएस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करने की ज़रूरत है। एंड डिस्पाइट द गैप इन द पीडीएस, जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अभी भी गैप है। दिस इज द फैक्ट, वी हैव टू एक्नॉलेज दिस, देयर इज अ फैक्ट कि देयर इज अ गैप इन दिस, बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू रीच पीपल इन द करेंट सिचुएशन। जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन है उस टाइम पे दिस इज एक्टिंग एज अ पोटेंट टूल जहाँ पे लोगों तक पहुंचा जा सकता है और बेनिफिट्स के सारी चीज़ उनको दी जा सकती है, राइट। सो दिस इज एन एनालिटिकल न्यूज़। आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो राइट दिस, यू गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द ड्रग्स अब्यूज एंड द पेंडेमिक, यू कैन फाइंड दिस न्यूज़ इन द हिंदू। आपको एडिटोरियल पेज में मिल जाएगी जहाँ पे टाइटल है ड्रग अब्यूज एमिड पेंडेमिक। सो दिस इज अगेन रेलिवेंट फॉर जो जनरल स्टडीज पेपर 3। Now, COVID-19 crisis has exposed people to vulnerable use of trafficking and illicit drugs. Basically, जब लोगों के पास प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं है तो एक्सपेरिमेंट्स चल रही है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन हो, इस तरह के टैबलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट हो रही है एंड पीपल आर गेटिंग वनरेबल टू द मेडिसिन, राइट। बिकॉज किसी भी चीज़ अगर मलेरिया के डिजीज़ के लिए जो जो बनाई गई है टैबलेट्स, उसको आप कोरोना में यूज़ कर रहे हो, तो दैट पीपल आर गेटिंग वनरेबल and more people are using drug and more illicit drugs are available than ever. Fine, this is what the editorial quote. और जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुई है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक, many people are going to are just moving towards the substance abuse, right? now बात करें मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप्स की, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसमें जो पीड़ित हैं या फिर जो ड्रग्स के शिकार हुए हैं नो इलिसिट ड्रग्स के, तो वनरेबल एंड मार्जिनल ग्रुप वो सबसे ज़्यादा, यूथ, वुमेन एंड पुअर हैव बीन द हार्म द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड 1 out of 3 ड्रग यूजर आर वुमेन, तो 3 में से जो एक यूजर है दिस इज वुमेन, राइट। and around 269 million people are using drugs in 2018. So this is a report which has quoted 2 years back. और अगर बात करें मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ड्रग्स इन द डेवलप्ड कंट्री रादर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। जो डेवलपिंग कंट्रीज, तो ज़्यादा कहाँ पे यूज़ है डेवलप्ड कंट्रीज में और लेस यूज़ कहाँ है डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट। और जो वेल्थियर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है दे हैव अ हायर प्रिवलेंस ऑफ द ड्रग यूज। जो वेल्थियर सोसाइटी है, जैसे मैं डेवलप्ड नेशन की बात करूँ तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। The people who are socially and economically disadvantaged are more likely to develop the drug use disorder, because ऐसे लोग हैं, उसकी जो पॉपुलेशन की बात करो तो almost 3.5 million people ऐसे हैं, they are suffering from the drug use disorder globally, not only in India, this is the global data, right? Now coming to the other part, अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की, तो जो रिस्क है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ड्रग्स की, वो वर्सन हुई है। वहाँ पे बेसिकली लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब्स भी कम हुए, स्टिग्मा है एक सोशल इंक्लूजन का, तो लोग अपने आप को ये बेसिकली इधर द मेंटल टेंशन और इनइक्वालिटीज़ की वजह से दीज थिंग्स आर गोइंग एंड वी आर फर्दर मूविंग अगे फ्रॉम द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारे SDG के टारगेट्स हैं कहीं ना कहीं उससे हम पीछे हट रहे हैं। And more than 80% of the world population, mostly living in the low and middle income country, they are deprived of access to drug for pain relief and the essential other medical uses. तो ऐसे कंट्रीज में जो मिडिल इनकम कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या और भी जो छोटे देश हैं, युगांडा, दिस काइंड ऑफ they have do not have the access to proper medicines, right? तो वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना भी पड़ रहा है। कहीं पे यूज़ ज़्यादा है, कहीं पे लोगों को दवाइयाँ मिल भी नहीं पा रही है। And despite the development assistance, a dedicated drug control fell by some 90% between 2002 to 2017. So this is again one important data. Now there is a need of international cooperation to increase the access of the कंट्रोल ड्रग एंड मेडिसिनल पर्पस। तो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है, चाहे WHO हो या कोई और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो एक कोऑर्डिनेशन बना करके, जैसे अपने अफ्रीका में देखा होगा बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो काम कर रही है WHO के साथ मिल करके। सो दिस टाइप ऑफ बेसिकली थिंग्स आर नीडेड। और जो हेल्थ सेंट्रिक राइट बेस्ड जो जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोचेज हैं दैट नीड टू बी यूज्ड इन द डिलीवरिंग द पब्लिक हेल्थ केयर आउटकम। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। एंड देयर इज़ अ नीड फॉर ड्रग स्ट्रैटेजी एड्रेसिंग द कंट्री लेवल एज वेल एज द रीजनल चैलेंजेस, राइट।
नाउ बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ, दैट इज पंचायत फंडिंग। दिस न्यूज़ ऑल्सो यू कैन फाइंड इन द हिंदू, जहाँ पे टाइटल है पंचायत गेट 10 लाख करोड़ टिल 2026। एक रिकमेंडेशन है फिनांस कमीशन और बेसिकली जो हमारी पंचायत राज मिनिस्ट्री है। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पंचायत राज जो मिनिस्ट्री, उन्होंने डिमांड किया है कि हमारे जो फंडिंग्स हैं बेसिकली मिनिस्ट्रीज की, उसको 5 फोल्ड इंक्रीज करने की ज़रूरत है। नो, दिस वुड बी इंक्रीज टू 5 फोल्ड टू गेट द प्रेजेंट सिचुएशन जिस तरह से उसको ओवरकम करने के लिए। सो दे हैव डिमांडेड विद द फिनांस कमीशन की जो फंडिंग है रूरल लोकल बॉडीज़ में वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी रिसेंट में जो मीटिंग हुई थी 15th फिनांस कमीशन की, उसमें बेसिकली ये चीज़ें रिकमेंड की गई थी। सो दे हैव आस्क्ड कि 10 लाख करोड़ to be allocated for 2021 and 2025 period। तो आने वाले 5 सालों के लिए they have asked that at least 10 lakh crore should be given। This would be close to almost 10% of the GDP or 1% of the GDP that finance commission has to check, but this is the amount you have to note। और जो 14th फिनांस कमीशन थी, उन्होंने पहले 2 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास ही एलोकेशन किया था, right? Now they are demanding 8 crore more, so the total would be 10 lakh crore rupees, right? ना बात करें हाउ मच फंड वाज यूटिलाइज, जो अमाउंट एलोकेट की गई उसमें यूटिलाइजेशन कितनी है। तो एक इम्पैक्ट इवेल्युएशन की गई थी, एक स्टडी की गई है, जिसमें पाया ये गया कि 78% द फंड वाज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एफसी ग्रांट ऑफ 2015 एंड 2019। तो अ वेरी गुड अमाउंट, मतलब ठीक है 80% के आसपास अगर यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो इट्स अ गुड। एटलीस्ट 90% होना चाहिए, बट 80% इज नॉट बैड, इट अप्रॉक्सीमेट 80% है ये। Now the road construction and the maintenance as well as drinking water supply, major products, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली सबसे पहला काम होता है जब पंचायत में रोड कंस्ट्रक्शन का, दूसरा मेंटेनेंस वर्क का, और तीसरा जो ड्रिंकिंग वाटर, जो पाइपलाइन, बेसिकली पाइपलाइन जो सरकार की भी जो कोशिश है जल जीवन मिशन के थ्रू कि जो पाइपलाइन वाटर दिया जाए बाय 2022, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी जो टारगेट है वो 2024 तक ही अचीव हो पाएंगे, 2024 एंड 2025 तक, राइट। And almost 2.36 lakh basically lakh panchayat across the country have 29 functions under their ambit, और according to the 11th schedule of the constitution। तो इतने पंचायत हैं जो कि 29 बेसिकली फंक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो गुड, एक यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, फंड की सही यूटिलाइजेशन हो, सही डाइवर्जन हो, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। नाउ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत हैज़ गेन्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल नोडल पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। उन्होंने बहुत हद तक मदद की है। किस तरह से मदद की है? तो कोविड-19 के टाइम में दे हैव रन ऑलमोस्ट 38,000 क्वारंटीन एंड आइसोलेशन सेंटर अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कैंप्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग। सो दिस इज हाउ दे हैव हेल्प द गवर्नमेंट। और जो पंचायत राज मिनिस्ट्री है, दे हैव प्रपोज्ड कि एक कम्युनिटी किचन बनाया जाए लोगों के लिए, दैट वुड बी सेट अप इन ईच पंचायत टू बी ऑपरेटेड बाय द लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो वहाँ पे लोकल एसएसजी हैं, उनके थ्रू किचन बचाया जाए, कम्युनिटी किचन बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। सो दिस कम्युनिटी किचन कॉन्सेप्ट इज रिकमेंडेड बाय द पंचायती राज मिनिस्ट्री, राइट। Now the other news is a line of actual control that China along the LAC. This news you can find in the editorial of Today Hindu, where the title is "Why China is Being Aggressive Across the Line of Actual Control." So, as you know, there is an ongoing basically war, clashes between the line of actual control, and this is the posing a biggest national security threat to India. और जिस तरह से क्लैशेस हुई है गैलवन वैली में इन द ईस्टर्न लद्दाख, सो दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप एक बार मैप अच्छे से देख लें। दे हैव क्लेम्ड ऑलमोस्ट 20 इंडियन लाइव्स, इंडियन सोल्जर्स मारे गए। और जो फर्स्ट इंसिडेंट जो बेसिकली जो इंसिडेंट हुई है, जो फैटलिटीज़ हुई है, ये कहना है कि 45 साल में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, क्लोज टू 45 ईयर्स में के बाद इस तरह से वॉर हुई है कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में। एंड चाइना हैज़ रिविजिटेड इट क्लेम्स दैट द एंटायर गैलवन वैली हैज़ आस्क्ड इंडिया टू पुल आउट फ्रॉम द एरिया। और चाइना का कहना है कि गैलवन का जो रीजन है वो उनके एरिया के अंदर आता है, उनके मैप के अंदर आता है, और उन्हें इंडियन से कहा कि दे शुड विड्रॉ। पर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके मुताबिक जो पब्लिक डोमेन में आई है, तो चाइना ने ये सारी जो पोजीशंस जो लिए थे वो बेसिकली मई में ही लेना स्टार्ट कर दिया था। और जो वहाँ की जो वैली है, जो बेसिकली गैलवन वैली है, और जो पोंसगो सो रिवर है, वहाँ पे भी दे हैव कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। आई टेल यू हाउ चाइना मेक द थिंग्स, कैसे उनके जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं वो काम करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा।
एंड डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ मिलिट्री टॉक्स, टेंशन जो है अभी भी बरकरार है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है, राइट। सो इन 2017 में आपको पता होगा कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुई थी वो पिछले 2 महीने तक चली थी, राइट। सो देन नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट वाज हेल्ड और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई। तो चाइना का जो इंटेंशन मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो अगर किसी कंट्री चाइना है, राइट, एंड दिस इज इंडिया, सो व्हाट दे डू, इफ दे एंटर इनटू द रीजन, अगर वो इंडियन रीजन में आएंगे तो इनिशियली वो क्या करेंगे, दे विल कम टू 4 to 5 किलोमीटर्स, राइट। दिस इज बेसिकली अ चाइना स्ट्रैटेजी। फिर व्हेन दे एंटर दिस रीजन, जब मीटिंग होगी तो व्हाट दे विल डू कि हम 3 किलोमीटर्स के आसपास पीछे हट जाते हैं, दे वुड बी कमिंग टू द 3 kilometers down. This is 3 kilometer, right? And what they will say कि we have moved on, but actual में they have captured 1 kilometers, right? So this is how China strategy work. वो कुछ आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उससे कम पीछे हटते हैं, and they said कि basically we have moved on and there is a negotiation, but ultimately at the last they are winning 1 kilometers. So this has been a China strategy previously as well. कि पुराने टाइम से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, इस तरह से ये चीज़ें देखी गई है। एंड वन ऑफ द पॉपुलर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द चाइना मूव इज ड्रिवन बाय लोकल फैक्टर, जैसे कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रही है, या उनकी जो डिसीजन है जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडिया ने लद्दाख में जो डिसीजन लिया उसको लेकर के दे आर टेकिंग द सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स। सो दिस इज कम्प्लीटली दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक strategy which China is following. Definitely they have to pay for it. And there is a clear shift of Chinese foreign policy post COVID-19 आउटब्रेक। तो चाइना ने COVID-19 के बाद भी इस तरह से इस स्ट्रैटेजी की है कि जहां उनको वैक्यूम दिखता है इंडिया में, इंडिया या किसी कंट्रीज में, दे ट्राई टू गेट इनटू इट, राइट। एंड द टेंशन अलोंग द LAC इज अ पार्ट ऑफ दिस शिफ्ट, राइट। अब बात करें कुछ रॉन्ग परसेप्शन की जो इंडिया के बारे में बनाई गई है, तो चाइना डज नॉट सी इंडिया एज अ स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे बेसिकली फाइट, यू कैन नॉट फाइट एंड यू कैन नॉट गो अहेड विद दैट, सो उस वजह से उसको स्विंग स्टेट का नाम देते हैं। तो स्विंग स्टेट की तरह नहीं देखता, बट वो देखता है इंडिया को एज एन अलाई प्रोग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया इज US इज ऑल्दो फेयर, नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, मतलब वी आर इन द गुड पोजिशन। तो एंड US एंड चाइना आर हैविंग अ वेरी बैड रिलेशन आफ्टर द ट्रेड वॉर्स, राइट। So its action has resulted in perceived that a strategic loss that has already has happened, and India has reached a partly because of the lack of depth in its strategic thinking. So this is a wrong perception that has been created against India by Chinese people. एंड मैं ये बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया टेलीग्राम पे, एक डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे आप हर सुबह क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, आप अपने आंसर लिख करके 6 PM तक हमें भेज सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट इनटू द आइडिया व्हाट टू राइट इन द एग्जामिनेशन और किस तरह से आपको पेस बना कर रखना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, चेक कर ले और इस चैनल के साथ बढ़ें और आगे इसका बेनिफिट ले। अब बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो जो कल के सवाल थे उसका पहला आंसर है, उसके जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। मैंने आपसे पूछा था कि बेसिकली जो ऑल्बिंगो ऑर्गान्टो इसके बारे में, सो दिस इज ओनली नोन एज इन रिसेंटली रिलीज्ड इनटू द जंगल एंड इन द रिमोट एरिया ऑफ ब्रुनेई, इंडोनेशिया। जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, दैट अल्बिनो ऑर्गान्टुआ इज एन वेजिटेरियन एंड दे कैन क्लाइम एज हाई 35 meters एंड ईटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसका आंसर है सी। यहाँ पे मैंने आपसे विदेश्वरा टेम्पल के बारे में पूछा था कि द पेंटिंग ऑफ विदेश्वरा टेम्पल shows the narration and aspects related to Lord Shiva and Shiva Kailasha, Shiva as Tripuntaka and Shiva as Nataraja। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं कि टेम्पल ऑफ विदेश्वरा एट द तंजावुर बेसिकली इज द रीजन ऑफ राजा राजा एंड ही वाज द सन ऑफ द राजेंद्र चोल, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ कमिंग टू द MCQs। सो पहला सवाल आपसे एनवायरमेंट से है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन बस्टेड, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द क्रिटिकली इंजर्ड बाय IUCN, द बर्ड कैन फ्लाई ड्यू टू द हेवी वेट, इट्स कांट फ्लाई ड्यू टू हेवी वेट, राइट, and they are found in the arid and semi-arid grassland. So which among the following is correct? आप एलिमिनेट करके भी आंसर इसका निकाल सकते हैं, A, B, C या फिर D। और आप लोग आंसर दें एंड डू लेट मी नो कि नो मैंने पहले भी पूछा था, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो इस सेशन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। सो डू लेट मी नो कि अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप आंसर में कमेंट करिए, सो दैट एक पार्टिसिपेशन बना रहे आपके तरफ से भी हमारे तरफ से भी। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें, और अगर आप चाहते नहीं है क्वेश्चंस के करने के लिए तो आई विल डिसकंटिन्यू दिस क्वेश्चन सीरीज, राइट। सो प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
Now the second question from the static of the current affair. Consider the following statement with regards to International Labour Organization. It is only a tripartite unit agency that bring government, employers and work together. And basically it is according to the 2018 basically 8 and 7 report that India has recorded the highest average real wage in the South Asia, right? तो इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है आप बताएं, A, B, C या फिर D, right? So do write your answer in the comments down below. And as I will tell you that we have launched basically mock test series जहाँ पे 20-25 टेस्ट हैं, इसको आप अवेल कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली. और अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो हमें बताएं. यूट्यूब चैनल, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज. इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके. बहुत सारे एग्जाम्स रिलेटेड प्रीलिम्स वार्म अप है और भी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे. तो चैनल सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू गेट मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक बटन इन दिस वीडियो. एंड यू हैव एनी अदर कंसर्न, डू लेट अस नो. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.